everyone, welcome in your English Kaksha. In this video we are going to start the fourth chapter of snapshot book, that is Albert Einstein at School, and is penned by Patrick Pringle. Albert Einstein, that was from 1879 to 1955, is regarded as the greatest physicist since Newton. हम सभी न्यूटन के बारे में जानते हैं और एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में भी जानते हैं. In the following extract from the young Einstein, the well-known biographer Patrick Pringle. In the following extract from the young Einstein, means the piece of writing that we are going to read, it is taken from the young Einstein and is written by the famous biographer whose name is Patrick Pringle. Here also we see that Patrick Pringle is the writer of this chapter, describes the circumstances, means in this chapter हमें वो उस circumstances के बारे में बता रहा है which led to Albert Einstein's expulsion from a German school. Albert Einstein एक जर्मन स्कूल में पढ़ता था and he was expelled from that school. What was the circumstances? We will see in this chapter. So let's start reading of this chapter. In what year Einstein asked the history teacher, did the Persians defeat the French at Waterloo? Waterloo is the place that is in Germany. Here, history teacher was asking a question to Albert Einstein about the defeat of Persian and in what year it was done. And at that moment, Albert Einstein said, I don't know. He was not aware about the fact and that's why he said, I don't know. Why don't you know? You have been told it often enough. टीचर ने कहा, क्यों नहीं पता तुम्हें? बहुत बार बताया गया है. I must have forgotten. उसने कहा कि मैं भूल गया होऊंगा. Did you ever try to learn? Asked Mr. Brown. Brown is the name of the history teacher. And उसने कहा कि कितनी बार तुम्हें बताया है, कभी तुम कोशिश भी करते हो लर्न करने की? No sir, Albert replied with his usual unthinking honesty. और एल्बर्ट ने बिना कुछ सोचे अपनी उस ईमानदारी से ये बोल दिया कि नहीं, मैंने कभी याद करने की कोशिश ही नहीं की. Why not? क्यों नहीं की? I can't see any point in learning dates. One can always look them up in a book. Here एल्बर्ट कहता है कि मैं नहीं सोचता कि डेट्स को कभी लर्न करना चाहिए. हम डेट्स को बुक्स में से देख कर भी पढ़ सकते हैं. Then why to learn the dates? It was the philosophy of Albert Einstein. It was the thinking of Albert Einstein at his childhood. Mr. Brown was speechless for a moment. और जब टीचर को कोई इस तरह से जवाब देगा तो how the reaction of the teacher will come, we can guess. And at the same moment, teacher said, "You amaze me, Einstein," he said at last. "Don't you realize that one can always look most things up in the books? That applies to all the facts you learn at school." तब टीचर कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि और भी तो चीज़ें बुक में से देखकर पढ़ी जा सकती हैं, तो फिर स्कूल में क्या काम है तुम्हारा? Yes sir. And Einstein ने कहा, जी पढ़ा जा सकता है. Then I suppose you don't see any point in learning facts. Frankly sir, I don't. Albert said. तो टीचर ने कहा कि आप और भी लर्निंग फैक्ट्स जो है वो बुक में से देख के पढ़ सकते हो. एंड एल्बर्ट ने कहा कि yes, I do think so. Then you don't believe in education at all. And the teacher at that point said कि फिर तो तुम्हें एजुकेशन में भी कोई बिलीव नहीं होगा. Oh yes sir, I do. कहते नहीं, एजुकेशन में तो यकीन है. I don't think learning facts is education. लेकिन फैक्ट्स को लर्न करना एजुकेशन नहीं है. And it was actually the thinking of Albert Einstein which helped him to become a popular scientist or a physicist that we are going to read about him today. In that case, said the history teacher with a heavy sarcasm, perhaps you will be so kind as you tell the class that Einstein theory of education. तो उसका मजाक उड़ाते हुए टीचर ने कहा कि फिर तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा कि अगर तुम पूरी क्लास को बताओगे कि आइंस्टाइन की थियरी क्या है एजुकेशन के लिए. एल्बर्ट फ्लश्ड. वो थोड़ा सा खुश हुआ और उसने क्या कहा, आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज़. उसने कहा कि फैक्ट्स जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आइडियाज़ हैं जो मैटर करते हैं. He said, I don't see the point in learning the dates of the battle or even which of the armies killed more men. I would be more interested in learning why those soldiers were trying to kill each other. See, this is very interesting thing that he presented in front of the teacher. क्या कहता है कि मुझे लगता है, I think it's not facts that matter, कि facts जो हैं वो ideas से ज़्यादा important नहीं है. I don't see the point in learning the dates of battles. युद्ध की डेट्स को याद करने से पहले या बैटल की डेट को याद करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप
ये देखो कि आखिर उसमें कितने सोल्जर्स मरे और उन्होंने एक दूसरे को क्यों मारा. What was the reason? Logically he was thinking, we should try to learn about the logic. We should try to learn about the reason why the enemy was, or the army was killing the another army, or they were calling them their enemy. That's enough. Mr. Brown's eyes were cold and cruel. We don't want a lecture from you, Einstein. You will stay in for an extra period today. Although I don't imagine it will do you much good. It won't do the school any good either. You are a disgrace. I don't know why you continue to come. Here, Mr. Brown was very angry and he said कि आज तुम 1 घंटा रुकने वाले हो, एक्स्ट्रा पीरियड रुकने वाले हो और हमें तुमसे इस बारे में कोई और लेक्चर नहीं चाहिए. एंड ऑल्दो ही डोंट इमेजिन, उसने कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हारे रुकने या ना रुकने से ना तो तुम्हें कोई खास फ़र्क पड़ने वाला है, ना ही स्कूल को कोई अच्छा कुछ मिलने वाला है. और मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि तुम स्कूल आते ही क्यों हो. इट्स नॉट माई विश सर, एल्बर्ट पॉइंटेड आउट. बट हेयर ऑल्सो एल्बर्ट प्रोटेस्टेड अगेंस्ट हिज व्यूज एंड ही सेड कि वो अपनी मर्जी से नहीं आता है. देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड ought to be ashamed of yourself. I suggest you ask your father to take you away. And at that point, teacher said कि तुम अपने father से कहो कि वो तुम्हें यहाँ से ले जाएं. Albert felt miserable when he left school that afternoon. Not that it had been a bad day. Most days were bad now. Anyway, but because he had to go back to the hateful place the next morning, he only wished his father would take him away. But there was no point in even asking. He knew what the answer would be. He would have to stay until he had taken his diploma. उसका दिन जो था उस दिन बहुत बुरा था. उसे ये भी पता था कि अगले आने दिन वाले भी दिन जो है वो उसके लिए बहुत अच्छे नहीं होने वाले. और वो ये भी सोच रहा था कि अगर वो अपने पापा को या अपने फादर को ये बात बोलेगा, then his father would not allow him to leave the school before he had taken his diploma. जब तक उसका डिप्लोमा कंप्लीट नहीं हो जाता, उसके फादर उसे वहाँ से जाने के लिए कहेंगे ही नहीं. And it would be useless to talk about this thing to his father. Going back to his lodgings did not cheer him up. अपने रूम पर वापस जाना और अपनी चीज़ों के बीच वापस जाने से भी उसको खुशी नहीं मिली. His father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarters of Munich. Munich is the name of the place where he was living. और इतने कम पैसे थे उसके फादर के पास, लेकिन फिर भी एक रूम उसे बहुत ही poorest quarters means that was not good in the facilities. और उसे वो जो रूम मिला था, it was not good even, and he did not mind bad food and lack of comfort and even the dirt and the squalor, and the children of that slum were too much quacky that they make the atmosphere very violent. इतने बोलते थे वहाँ के बच्चे कि वो उसे violence लगता था. His landlady beat her children regularly, and even the landlady beat her children regularly, and every Saturday her husband came drunk and beat her. और उसका husband भी हर Saturday पीकर आता और उसे मारता था. So this was actually the atmosphere where he was living in with. But at least you have a room of your own, which is more than I can say, said Yuri when he called round in the evening. Called round means जब शाम को यूरी उसके रूम पर चक्कर लगाने आया या एक राउंड लेने आया, तब यूरी ने कहा कि कम से कम तुम्हारे पास रूम तो है जहाँ तुम रह रहे हो. At least you live among civilized human beings even if they are all poor students, said Albert. यूरी was also living in a room, और उस पर एल्बर्ट कहता है कि तुम भी तो एक रूम में रह रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ तुम रह रहे हो वो ज़्यादा सिविलाइज लोग हैं. दे आर नॉट ऑल सिविलाइज, यूरी रिप्लाइड. यूरी ने कहा कि वो भी सिविलाइज नहीं है. डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वॉज किल्ड लास्ट वीक इन अ ड्यूल. तुमने सुना नहीं कि पिछले वीक जो लड़ाई में दोनों में से एक ने एक दूसरे को मार दिया, मीन्स एक ने दूसरे को मार दिया. एंड व्हाट हैपन्स टू दैट वन हु किल्ड हिम. एल्बर्ट ने पूछा तो फिर उसका क्या हुआ जिसने मारा था. Nothing, of course, he is even proud of it. कुछ नहीं हुआ, वो तो बहुत ही शेकी भी कर रहा है. His only worry is that the authorities have told him not to fight any more duels. और उसकी जो चिंता है वो ये है कि अथॉरिटीज़ ने उसे ये वार्निंग दी है कि अगली बार वो ऐसी कोई फाइट ना करे. He is upset about this because he hasn't a single scar on his face to wear for the rest of his life as a badge of honor. और वो इसलिए भी worried है क्योंकि उसके चेहरे पर कोई ऐसा मार्क नहीं आया जिसे वो दिखा सके लोगों को और उसे ऑनर फील हो सके. ओह, एक्सक्लेम्ड अल्बर्ट, एंड दीज आर द स्टूडेंट्स. और उसने कहा ये बच्चे हैं.
Well, you will be a student one day, said Yuri. और यूरी ने कहा कि तुम भी एक दिन स्टूडेंट बनने वाले हो. Let's see what is given on the next page now. I doubt it, said Albert gloomily. Gloomily means sadly. He was very sad to think about that and he said he doubted it. उसे शक था किस बात का? I don't think I will ever pass the exams for this school diploma. उसे लगा कि वो स्कूल डिप्लोमा कभी क्लियर नहीं पर कर पाएगा and then he would not be able to become a student in the college. He told his cousin Elsa the same next time she came to Munich. I doubt it, said Albert gloomily. Gloomily means sadly. I don't think I will ever pass the exams for the school diploma. He told his cousin Elsa the next time she came to Munich. Normally she lived in Berlin where her father had a business. उसकी कज़न थी एल्सा जो कि बर्लिन में रहती थी बट अब वो म्यूनिक आई हुई थी. उसने उसे भी यही सब बात बताई जो वो यूरी को बता रहा था. आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्जाम्स एल्बर्ट इफ़ यू ट्राइड, शी सेड. एंड एल्सा उसे भी समझाती है कि तुम इतना तो कर ही सकते हो कि एग्जाम्स पास हो जाएं. आई नो लोड्स ऑफ बॉयज़ हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर हु गेट थ्रू. कहते हैं कि तुमसे भी मूर्ख लड़के पास हो जाते हो, क्या तुम नहीं कर पाओगे? दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग. You don't have to understand what you are taught, just be able to repeat it in the exam. और कहते हैं कि समझने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम उसे रट लो और फिर उसको फटाफट से एग्जाम्स में लिख दो. ये एल्सा ने कहा. किसको कहा? एल्बर्ट आइंस्टाइन को. इट वॉज द सजेशन ऑफ एल्सा टू हिज कज़न एल्बर्ट आइंस्टाइन. दैट्स द होल ट्रबल, सेड एल्बर्ट. कहते यही तो प्रॉब्लम है. आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट. कहते मैं लर्न ही तो नहीं कर सकता. You don't need to be good at it. तुम्हें इतना भी याद नहीं करना है या तुम्हें इतना भी अच्छा नहीं गुड लर्नर बनना है. Anyone can learn like a parrot. तोते की तरह रट लो. You just don't try. And yet I always see you with a book under your arm, added Elsa. और वो कहती है मैंने हमेशा तुम्हें एक बुक पढ़ते देखा है. What is the one you are reading? कौन सी बुक है जो तुम पढ़ रहे हो? A book of geology. उसने कहा कि ये बुक है जियोलॉजी की. Geology, rocks and things. Do you learn that? जियोलॉजी जो कि पत्थरों और चीज़ों के बारे में है, क्या तुम वो पढ़ सकते हो? नो, वी हैव हार्डली एनी साइंस एट ऑल. कहता नहीं, हमारे स्कूल में साइंस है नहीं, इसलिए मैं ये बुक पढ़ता रहता हूँ. देन वाई आर यू नॉट स्टडिंग इट? तो तुम इसे पढ़ते क्यों नहीं हो? रीडिंग इज समथिंग एल्स एंड स्टडिंग इज अ डिफरेंट थिंग. बिकॉज आई लाइक इट. इजंट दैट अ गुड इनफ रीजन? एल्सा साइड. तो एल्सा कहती है कि क्या तुम्हारे लिए उसको पढ़ना और रीड करना दैट बोथ आर डिफरेंट, तो तुम इसे स्टडी करो. बिकॉज आई लाइक इट. वो कहते हैं कि मुझे ये पसंद है. टू स्टडी जियोलॉजी इज द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड दैट्स व्हाई ही सेड दैट ही लाइक्ड टू रीड जियोलॉजी बुक एंड दिस वाज द रीजन ओनली दैट ही वाज रीडिंग दैट बुक. एंड एट दैट पॉइंट एल्सा साइड. एक रिलीफ जो है वो ठंडी सांस लेती है. एंड यू आर राइट ऑफ कोर्स एल्बर्ट, शी सेड, बट इट वोंट हेल्प यू विद योर डिप्लोमा. कहती वो तो ठीक है लेकिन ये बुक तुम्हें तुम्हारे डिप्लोमा में हेल्प नहीं करने वाला. एंड अपार्ट फ्रॉम द बुक्स ऑन साइंस हिज ओनली कंफर्ट वाज द म्यूजिक एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली अंटिल हिज लैंडलेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप. और जो बुक्स के अलावा जो उसे पसंद था एल्बर्ट आइंस्टाइन को, दैट वाज द म्यूजिक. और वो हमेशा अपने वायलिन पर प्ले करता रहता, वायलिन प्ले करता रहता था तब तक जब तक कि उसकी लैंडलेडी उसे रोकती नहीं थी बंद करने के लिए. I must get away from here, he told Yuri. वो यूरी को कहता है कि मुझे तो बस यहाँ से जाना है. After 6 months alone in Munich, it is absurd that I should go on like this. In the end, it will turn out I have been wasting my father's money and everyone's time. It will be better for all if I stop now. कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने फादर के पैसे यहाँ वेस्ट करने चाहिए और दूसरों का टाइम वेस्ट करना चाहिए. अच्छा होगा कि मैं ये सब चीज़ें यहाँ रोक दूँ और यहाँ से चला जाऊँ. And then what will you do? Yuri asked. यूरी ने उससे पूछा कि फिर सोचा है कि तुम क्या करोगे? आई डोंट नो. इफ आई गो टू मिलान आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक अनलेस. हिज आईज ग्लीम्ड विद अ सडन आइडिया. यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर? कहता है कि अगर मैं मिलान चला गया जहाँ उसके फादर रहते थे तो वो मुझे वापस भेज देंगे जब तक कि मैं अपना डिप्लोमा कंप्लीट नहीं कर लेता. हियर अनलेस एंड आफ्टर देयर आर डॉट्स इट मीन्स द सेम परसेप्शन और द थॉट ही वाज हैविंग इन हिज माइंड. हिज आईज ग्लीम्ड विद अ सडन आइडिया एंड देन he struck an idea that, and then he asked Yuri that he know about a doctor or no. I know a lot of medical students and some of them are friendly, said Yuri.
डॉक्टर? नो, आई हैव नेवर हैड इनफ मनी टू गो टू वन. वाई? यूरी ने कहा कि मैं काफ़ी मेडिकल फ्रेंड्स को तो जानता हूँ लेकिन डॉक्टर को नहीं जानता. Suppose, said Albert, that I had a nervous breakdown. Suppose a doctor would say it's bad for me to go to school and I need to get right away from it. Then he told about his idea to Yuri. कहता है सपोज करो कि मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए और मुझे डॉक्टर ये कह दे कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है और मुझे स्कूल नहीं जाना चाहिए और आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट, और मुझे स्कूल से दूर रहना चाहिए. तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि उसके बाद उसने क्या प्लानिंग की और सच में क्या वो स्कूल से उसे छुटकारा मिला या नहीं. आई कांट इमेजिन अ डॉक्टर सेइंग दैट, सेड यूरी. यूरी कहता है कि मैं तो ऐसी बात कहते हुए या सोचकर भी डॉक्टर के बारे में इमेजिन नहीं कर सकता. आई मस्ट ट्राई, सेड एल्बर्ट, टू फाइंड अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन नर्व्स. यूरी के कहने के बाद एल्बर्ट कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे एक ऐसे डॉक्टर के बारे में सोचना चाहिए जो कि नर्व्स स्पेशलिस्ट हो. There are plenty of them, Yuri told him. फिर यूरी ने उससे कहा कि ऐसे तो बहुत हैं. He hesitated for a moment and then added, rather reluctantly, I will ask some of the students if they know one, if you like. कहता है अगर तुम्हें ये लगता है तो मैं पूछूंगा अपने फ्रेंड से, अपने स्टूडेंट से कि अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो कि नर्व्स स्पेशलिस्ट हो. Will you? क्या तुम ऐसा करोगे? Oh, thank you, यूरी. तो एल्बर्ट ने यूरी को थैंक्स कहा और कहते ही उसकी आंखों में एक शाइन आ गई. इट मीन्स ही वॉज होपिंग समथिंग फ्रॉम यूरी. वेट अ मोमेंट, आई हैवंट फाउंड येट. कहता रुको, मैंने अभी किसी को ढूंढना नहीं है. ओ बट यू विल, लेकिन तुम ढूंढ लोगे. एंड इफ आई डोंट और आई डोंट नो, ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू. कहता है रुको, अगर मैं ऐसे किसी को ढूंढ लेता हूँ लेकिन वो अगर तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी नहीं हुआ तो ही विल, declared Albert. He was very much confident about his problem or the thinking that he was going to plan now. He said, कर लेगा, वो करेगा. I'm going to have a real nervous breakdown to make it easier for him. He laughed merrily. कहते हैं क्योंकि मैं जो आगे प्रिटेंड करने वाला हूँ वो सच में उसे ऐसा लगेगा कि मुझे सच में एक नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है और उस डॉक्टर के लिए ईजी होगा कि वो मुझे लिख के दे देगा या प्रिस्क्रिप्शन बना के दे देगा या फिर मुझे सर्टिफाई कर देगा दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम नर्वस ब्रेकडाउन. आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, रिमार्क्ड यूरी. कहते हैं लेकिन आज तक मैंने तुम्हें इतना कम नर्वस तो कभी नहीं देखा कि जिससे तुम्हें ये नर्वस ब्रेकडाउन का जो सर्टिफिकेट है या इस तरह की कोई प्रॉब्लम जो है वो रेक्टिफाई कर दी जाए. अ डे और टू एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट, एल्बर्ट एश्योर्ड हिम. कहता है 1-2 दिन भी और स्कूल जाऊंगा तो डेफिनेटली मुझे हो ही जाएगा. Certainly he had lost his high spirit when Yuri saw him next. I can't stand it any longer, he said. I really shall have a nervous breakdown that will satisfy any doctor. अगली बार जब यूरी ने उसको देखा तो उसे लगा कि सच में उसका जो करेज है और उसका जो एंथुजियाज्म है वो लॉस्ट हो गया है. एंड एल्बर्ट सेड, आई कांट स्टैंड इट एनी लॉन्गर. अब मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता. मुझे लगता है कि मुझे जल्दी से नर्वस ब्रेकडाउन हो जाना चाहिए ताकि मैं किसी डॉक्टर को सेटिस्फाई कर सकूं और अपने आप को स्कूल से दूर ले जाऊं. कीप इट अप देन, सेड यूरी. यूरी ने कहा कि फिर लगे रहो. आई हैव फाउंड अ डॉक्टर फॉर यू. मैंने भी तुम्हारे लिए एक डॉक्टर ढूंढ लिया है. यू हैव ढूंढ लिया है. एल्बर्ट फेस लिट अप. उसका चेहरा जगमगाने लगा. मीन्स ही वॉज वेरी हैप्पी टू लिसन दिस फ्रॉम यूरी. ओह गुड, व्हेन आई कैन सी हिम, मैं उससे कब मिल सकता हूँ. I have an appointment for you for tomorrow evening, Yuri said. Here is the address. उसने कहा कि कल शाम ही मिल सकते हो और मैंने तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट ले लिया है और ये उसका एड्रेस है. He handed Albert a piece of paper. Dr. Ernest Weil, is he a specialist in nerve troubles? Asked Albert. कहता है कि ये जो डॉक्टर है अर्नेस्ट वेल ये नर्वस स्पेशलिस्ट है. Not exactly, Yuri admitted. As a matter of fact, he only qualified as a doctor last week. You may even be his first patient. कहता नहीं, इसने भी पिछले ही वीक जो अपना डॉक्टर का जो डिप्लोमा है या जो डिग्री है वो पास आउट की है और तुम उसके पहले पेशेंट होने वाले हो. You know him as a student then. तुम उसे एज ए स्टूडेंट तो जानते ही होंगे. I have known Ernest for years. Yuri hesitated for a few moments. He is not a fool, he warned Albert. तो यूरी ने कहा कि हाँ मैं उसे एज ए स्टूडेंट तो जानता हूँ लेकिन वो इतना मूर्ख नहीं है. उसने एल्बर्ट को कहा कि उसे मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं होगा. व्हाट डू यू मीन?
क्या मतलब है इसका? डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आईज, उसकी आंखों के आगे कुछ ऐसा करने की कोशिश मत करना जिससे कि तुम प्रॉब्लम में आ जाओ. बी फ्रैंक विद हिम बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट वट यू हैव नॉट. कहता है कि उसके सामने ये कोशिश मत करना दिखाने की जो तुम सच में नहीं हो. नॉट दैट यू वुड डिसीव एनी वन, और किसी को भी धोखा देने की कोशिश मत करना. यूरी ने कहा, यू आर द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर, तुम दुनिया के सबसे बेकार झूठ बोलने वाले हो, मतलब तुम झूठ भी नहीं बोल सकते. Albert spent the next day wondering what to tell the doctor. When the time arrived for his appointment, he had worried over it so much that he really was quite nervous. And when the time came to meet the doctor for his appointment, वो इतना परेशान हो गया कि सच में उसे ऐसे लगने लगा कि वो नर्वस फील कर रहा है. I don't know really how to describe my trouble, Dr. Wheel, he began. Don't try, said the young doctor with a friendly smile. Yuri has already given me a history of the case. Oh, what did he say? Only that you want me to think you have had a nervous breakdown and say that you must not go back to the school. Oh dear, Albert's face fell. He shouldn't have told you that. Why not? Isn't it true then? Yes, that's the trouble now. You will say there is nothing wrong with me and you will tell me to go back to school. Don't be too sure of that, said the doctor. As a matter of fact, I'm pretty sure that you are in a nervous state about the school, but I have not told you anything about it, said Albert, wide-eyed. How can you know that? जब वो डॉक्टर से मिलने जाता है तो डॉक्टर उसको बोलता है कि अभी तुम्हें कुछ भी कहने की नीड नहीं है क्योंकि यूरी ने मुझे ऑलरेडी तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में बता दिया है. तब एल्बर्ट ने कहा कि नहीं, उसे नहीं बताना चाहिए था क्योंकि अब तुम कहोगे कि मैं सच में बहुत ज़्यादा ही सोच रहा हूँ और मुझे स्कूल चले जाना चाहिए. और डॉक्टर ने उसे कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है. और फिर बिकॉज यू वुडेंट हैव कम टू सी मी अबाउट इफ़ यू हैड नॉट बीन प्रिटी क्लोज टू अ नर्वस ब्रेकडाउन. दैट्स वाई नाउ, सेड द डॉक्टर ब्रिस्कली, इफ आई सर्टिफाई दैट यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन एंड मस्ट स्टे अवे फ्रॉम स्कूल फॉर अ वाइल, व्हाट विल यू डू? कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें सच में ही कह दूँ कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन है तो तब तुम क्या करोगे? आई विल गो टू इटली, सेड एल्बर्ट, टू मिलान वेयर माई पेरेंट्स आर. कहता है कि मैं इटली चला जाऊंगा, मिलान में जहाँ मेरे पेरेंट्स रहते हैं. एंड वट विल यू डू देयर? डॉक्टर ने पूछा कि फिर वहाँ क्या करोगे? आई विल ट्राई टू गेट इन टू एन इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट. वहाँ मैं एक इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लूँगा. हाउ कैन यू विदाउट डिप्लोमा? बिना डिप्लोमा के तुम कैसे स्कूल में एडमिशन ले लोगे या कॉलेज में एडमिशन ले लोगे? डॉक्टर ने पूछा. आई विल आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर टू गिव मी समथिंग अबाउट माई वर्क एंड परहैप्स दैट विल बी इनफ. I have learned all the maths they teach at school and bitter more, he added when Dr. Wheel looked doubtful. उसने कहा कि मैं अपने मैथ्स टीचर से कुछ एक्स्ट्रा रिमार्क्स ले लूँगा जो मुझे हेल्प करेंगे एडमिशन्स के लिए, क्योंकि स्कूल में जो मैथ्स सिखाया गया है मैंने कुछ उससे एक्स्ट्रा ही सीखा है और जितना भी उन्होंने सिखाया वो मैंने सारा सीखा है. तो उसने ये सब तब कहा जब डॉक्टर व्हील उसको डाउटफुली देखता है. वेल, इट्स अप टू यू, ही सेड. I doubt if it will come off, but I can see you. You are not doing yourself or anyone else much good by staying here. डॉक्टर ने कहा कि मुझे लगता है कि यहाँ रहकर ना तो तुम अपने लिए ना किसी दूसरे के लिए अच्छा कर रहे हो. How long would you like me to say you should stay away from school? Would 6 months be right? This is very kind of you. तो डॉक्टर ने पूछा कि चलो मैं अगर तुम्हें सर्टिफाई कर दूँ कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन है तो कितने टाइम के लिए? 6 months काफ़ी होंगे. लिसनिंग दिस, एल्बर्ट सेड, दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू, कि तुम बहुत अच्छे हो. अगर 6 months के लिए स्कूल ना जाना पड़े तो बहुत अच्छा होगा. इट्स नथिंग, आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप्ड बीइंग ए स्टूडेंट माई सेल्फ, सो आई नो हाउ यू फील. कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि मैं अभी अभी एज ए स्टूडेंट मैंने क्लियर किया है, इसलिए मुझे पता है कि तुम कैसा फील कर रहे होंगे. हियर यू आर. एंड he handed him the certificate and the best of luck. While giving him a piece of paper that was a certificate for his nervous breakdown, he extended his wishes to him by saying best of luck to Albert. How much? He said how much money he have to pay for that certificate? Nothing. If you have anything to spare, invite Yuri to a meal. कहता है अगर तुम्हारे पास कुछ देने के लिए है तो आप यूरी को खाने पे बुला लेना. ही इज़ ए गुड फ्रेंड ऑफ माइंड एंड योर्स टू, आई थिंक. कहते वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और तुम्हारा भी मुझे लगता है. एल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर बट ही प्रिटेंडेड ही हैड एंड टुक यूरी आउट टू सपर. सपर मीन्स
डिनर। यहाँ पर वो अपने आप को शो करता है कि उसके पास बहुत पैसे हैं और वो यूरी को डिनर पर ले जाता है। Isn't it wonderful, he said after showing Yuri the certificate. Yes, it's fine, Yuri agreed. 6 months is a good period. This way you won't actually be leaving the school, so if the worst comes to the worst, you will be able to come back and carry on for your diploma. यहाँ जब वो उसे सर्टिफिकेट दिखाता है तो यूरी कहता है कि ठीक है, 6 months is a good period, और अगर ऐसा कुछ होता है कि तुम्हें दोबारा से स्कूल आना पड़े तो तुम आ सकते हो और अपना डिप्लोमा ले सकते हो। I will never go back to that place, Albert assured him. एल्बर्ट ने कहा कि मैं तो वहाँ कभी जाऊँगा ही नहीं। I am going to take this certificate to the head teacher tomorrow and that will be the end of it. मैं तो कल ये हेडमास्टर के पास ले जाऊँगा और कल ये लास्ट डे होगा स्कूल का। Don't forget to get a reference in writing from your mathematics teacher first, Yuri reminded him. उसने कहा कि मैथ्स के टीचर से रेफरेंस ले लेना। If I say I can't teach you anymore and probably you will be soon be able to teach me, will that be all right? He asked. Here the mathematics teacher was asking, अगर मैं ये कहूँ कि मैं तुम्हें और नहीं पढ़ाने वाला क्योंकि तुम भी मुझे पढ़ा सकते हो तो इतना काफ़ी होगा। It's only the truth, but all right, I will put it more seriously. It was still a glowing reference, Mr. Koch. Mr. Koch was his mathematics teacher and made the point that Albert was ready immediately to enter a college or an institute for the study of higher mathematics, and this reference will be a kind of assurance for Albert to get an admission in the college or any institution for the higher mathematics studies. I am sorry you are leaving us, although you are wasting your time in my class, he said. कहता है कि तुम, मुझे लगता है कि हमें छोड़कर जा रहे हो, इसलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, और तुम मेरी क्लास में टाइम वेस्ट करते थे, इसके लिए भी मुझे बहुत बुरा लग रहा है। It's almost the class, only the class where I am not wasting my time, said Albert. But how did you know I am leaving, sir? तो उसने कहा, यूरी ने जैसे ही एल्बर्ट को ये पता चला कि मैथमेटिक्स टीचर ये कह रहा है कि वो उसे छोड़कर जा रहा है, तो उसने पूछा कि आपको कैसे पता कि मैं जा रहा हूँ? You wouldn't have asked me for this reference, otherwise I thought you would wonder. तो उसने कहा कि तुमने मुझसे ये रेफरेंस के लिए पूछा ना, इसीलिए, अदरवाइज मुझे लग रहा था कि तुम हैरान हो जाओगे। There is nothing to wonder about, Einstein. I knew you were going to leave before you know yourself. मैथमेटिशियन टीचर ने कहा कि अगर तुम्हें खुद पता होता कि तुम क्या करने वाले हो और तुम क्यों जाने वाले हो तो शायद तुम सरप्राइज ना होते। Albert was puzzled. What did the teacher mean? Albert थोड़ा confused हो गया कि टीचर क्या कह रहा है। He soon found out before he had a chance to ask for the interview with the head teacher. He was summoned to the head's office. इससे पहले कि वो उस हेडमास्टर से मिलने के लिए उसे वेट करना पड़ता, हेड टीचर ने उसे बुला लिया। Well, it saves me the trouble of having to wait an hour to outside, he thought. उसने कहा चलो 1 घंटा 2 घंटा वेट नहीं करना पड़ा, मेरा टाइम बच गया। He hardly bothered to wonder why he had been sent for. अब उसने इतना भी नहीं सोचा कि उसे यहाँ आखिर बुलाया क्यों गया था। But vaguely suppose he was to be punished again for the bad work and laziness. लेकिन vaguely means clearly. उसने क्लियरली ये सोच लिया कि शायद उसको पनिशमेंट मिलने वाला है उसके बैड वर्क और लेजीनेस के लिए। वेल ही हैड पनिश्ड विद पनिशमेंट्स, और पनिशमेंट पे पनिशमेंट तो उसको मिलती ही रहती थी। आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, द हेड टीचर सेड टू एल्बर्ट। सरप्राइज, योर वर्क इज टेरिबल एंड आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर, आइंस्टाइन। आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ। लीव स्कूल नाउ, रिपीटेड एल्बर्ट डेज्ड। दैट्स व्हाट आई सेड। यू मीन, एल्बर्ट सेड, that I am to be expelled? Here when the head teacher said that you are expelled from the school and you have to leave the school, and that made Albert surprised that he was expelled from the school. You can take it that way if you wish, Einstein. उसने कहा अगर तुम ऐसा ही सोचना चाहते हो कि तुम एक्सपेल हो गए हो तो तुम सोच सकते हो। The head teacher was not mincing words, and the simplest thing will be for you to go of your own accord and then the question won't arise. कहता है तुम अब जो करना चाहते हो तुम करो और तुम्हारे से कोई क्वेश्चन पूछने वाला भी नहीं होगा। But said Albert, what crime I have committed? कहता लेकिन मैंने किया क्या है? Your presence in the classroom makes it impossible for the teacher to teach and for the other pupils to learn. You refuse to learn, you are in the constant rebellion and no serious work can be done while you are there. कहते कि तुम्हारी प्रेजेंस में
टीचर के लिए पढ़ाना मुश्किल हो जाता है, दूसरे बच्चों के लिए लर्न करना मुश्किल हो जाता है और तुम सीधा ही प्रोटेस्ट करने लगते हो कि तुम नहीं याद करोगे. And no serious work is going to be done in the school whenever you are present in the class. Albert felt that medical certificate almost burning a hole in his pocket, and for that expulsion only, he tried hard to get the certificate from the doctor, but now he was thinking that certificate was having a hole and it was burning in his pocket. कि जैसे वो जो certificate था that was waste, and without his certificate, using that certificate, he was expelled from the school. I was going to leave anyway, he said. वो कहता ठीक है मैं जा ही रहा हूँ. Then we are in agreement at least, Einstein, the head said. For a moment, Albert was tempted to tell the man what he thought of him and of his school. Then he stopped himself without another word. Holding his head high, he stalked out. Shut the door after you, shouted the head. Albert ignored him. अब एल्बर्ट ये चाहता था कि वो उसको बता के जाए हेड को कि वो और उसके स्कूल के बारे में क्या सोचता है, मीन्स हेड के बारे में और वो स्कूल के बारे में क्या सोचता था. बट इग्नोरिंग हिज थॉट्स ही स्टॉक्ड आउट. वो वहाँ से चला गया. हेड ने उसे कहा कि जाते जाते वो दरवाज़ा बंद कर जाए, बट एल्बर्ट ने उसे इग्नोर कर दिया. He walked straight on out of the school where he had spent his 5 miserable years without turning his head to give it a last look. अब वो पीछे मुड़ के एक बार भी उस स्कूल को नहीं देखना चाहता था जहाँ पर उसने दुख भरे 5 साल बिताए थे. Miserable, a sorrowful journey. He could not think of anyone he wanted to say goodbye to. और उसे नहीं लगा कि उसे किसी को goodbye भी कहना चाहिए. Indeed, Yuri was almost the only person in Munich he felt like seeing before he left the town he had come to hate almost as much as the school. और यूरी ही एक ऐसा पर्सन था पूरे म्यूनिक में जहाँ उसे लगा कि उसे एक बार उसे मिल लेना चाहिए. एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड. क्योंकि एल्सा बर्लिन आ चुकी थी इसलिए वहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिससे वो गुड बाय एंड गुड लक सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट. यू आर गोइंग टू अ वंडरफुल कंट्री आई थिंक. आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर. तो यूरी ने उसे विश किया कि तुम बहुत अच्छी कंट्री में जा रहे हो और मुझे लगता है कि तुम वहाँ बहुत खुश रहोगे. सो दिस इज़ फ्रॉम योर चैप्टर Albert Einstein. I hope each and everything from this chapter is clear to you, and you can do the textual questions that are given in the book's back exercise. So in the next video we will come here with the next chapter. Till then, take care and goodbye.